ओके, सो आज हम थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम इज सपोज y is equal to f of x is differentiable function of x. Okay, suppose y is equal to f of x is differentiable function of x, and y is 1 1 and onto, that means inverse exist. Okay, dy by dx is not equal to 0 if f inverse of y is differentiable, then derivative of this inverse function f inverse of y is same as 1 upon f dash of x. That means dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. Okay, theorem क्या है? y is equal to f of x is differentiable function of x. Y is 1 1 and onto, that means inverse exist. dy by dx is not equal to 0. ये क्यों कंसिडर किया है? बिकॉज यहाँ पे dy by dx डिनोमिनेटर में है, so it cannot be equal to 0. So that's why it's already given that dy by dx is not equal to 0. Okay, and then f inverse of y is differentiable, then its derivative is equal to 1 upon f dash of x. इसी को नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आता है dx by dy equal to 1 upon dy by dx. My screen is blur. Is it visible or not? सही है मैम। Okay, okay. Clear? इतना समझ आया? What is the theorem? Okay, so proof कैसे करेंगे? What you have to prove is dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. ये हमको प्रूफ करना है. To prove, so first of all consider delta x is a small increment in x. Okay, small increment means small change. Consider delta x is small increment in x. That implies corresponding change in y is delta y. Consider delta x is small change in x, then corresponding change in y is delta y. Okay, so now delta x upon delta y into delta y upon delta x is equal to 1, because ये कैंसल होके 1 मिलेगा. Delta x upon delta y into delta y by delta x is equal to 1, correct? So therefore delta x upon delta y is equal to 1 upon delta y by delta x. इसको इधर लेके जाओ, where delta y by delta x is not equal to 0. Why? Because this is in denominator and 1 upon 0 is infinity. So therefore delta y by delta x not equal to 0 limit. Now take limit on both sides. Limit delta x tends to 0. So limit delta x tends to 0, delta x upon delta y is equal to limit delta x tends to 0, 1 upon delta y by delta x. Clear? But you know that when delta x tends to 0, the corresponding change in y is delta y tends to 0. ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल्टा y है, इसलिए हम इसका लिमिट चेंज करेंगे डेल्टा y टेंस टू 0 में. तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, डेल्टा x बाय डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0,
del y by del x. क्लियर? नाउ स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया था लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज नथिंग बट dy बाय dx. करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? dx बाय dy एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? dy बाय dx. क्लियर? क्या करना है? सबसे पहले कंसिडर डेल्टा x इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, then corresponding change in y will be delta y. Okay, then take delta x by delta y cross delta y by delta x equal to 1. ये पूरे टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाओ. डेल्टा x by delta y equal to 1 upon del y by del x. Apply limit on both side, delta x tends to 0. बट वी वॉन्ट दिस डेफिनेशन, मीन्स जो डिनोमिनेटर में होगा उसको 0 की तरफ लेके जाना है. बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल्टा y है एंड हियर del x tends to 0. But as we know that when delta x tends to 0, corresponding change in y is del y. So del y भी tends to 0 होगा. इसलिए यहाँ का लिमिट चेंज किया, del y tends to 0. Sorry. Okay. अब use this definition and then terms change करो. This whole limit converted into dx by dy and ये denominator हो जाएगा dy by dx. Clear? प्रूफ एज इट इज टेक्स्ट बुक में है, तुम लोग देख सकते हो वहां से. अभी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जस्ट समझ के लो. एनी डाउट्स? लिमिट हम लोग कभी भी, नो यू कैन नॉट चेंज लिमिट एट एनी टाइम. यहाँ पे हम लोग क्यों चेंज कर रहे हैं? बिकॉज हमें पता है कि अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो करस्पॉन्डिंग चेंज हमें ये मिलने वाला है, इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं. मैम आपका स्क्रीन ब्लर है. आयुष ने बोला क्या अभी? माई स्क्रीन इज ब्लर. योर बैंडविड्थ इट्स स्लो आई गेस. नेट स्लो होगा इसीलिए ब्लर दिख रहा है. ओके, सो नाउ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, सॉल्व करो. क्या करना है? अगर मैंने फंक्शन दिया है y एंड इफ आई आस्क यू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो फाइंड क्या करना है? dx by dy. ओके, यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो y इज इक्वल टू, अभी भी ब्लर है क्या? आई गेस माई नेट इज वर्किंग स्लो. ओके, बट मैं रिपीट करूंगी, तुम लिखते जाना, ठीक है? सो y इज इक्वल टू 2x क्यूब minus 6x. Y is equal to 2x cube minus 6x. Find the derivative of inverse of function. Find the derivative of inverse of this function. Okay, so that means find क्या करना है? dx by dy, and you know that dx by dy is 1 upon dy by dx.
सो सबसे पहले कैलकुलेट करो dy by dx. That means differentiate y with respect to x. Differentiate y with respect to x. That is dy by dx is equal to d by dx 2x cube minus 6x. Calculate करो. Mahesh, unmute yourself. Mahesh, unmute yourself. Are you listening? Done? अक्षिता. हाँ ओके, आंसर बताओ. हेलो. इसका डेरिवेटिव बताओ पहले. पहले तो वो 2x क्यूब माइनस 6x है ना, तो उसको अलग अलग करेंगे. ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस डी बाई D. डी एक्स ऑफ 6x. देन हाँ, तो फिर वो 6 तो निकल जाएगा बाहर, कांस्टेंट है ना हाँ, नीचे वाले डी बाई स्टेप डी में. एक्स ऑफ एक्स. और वो 2 भी Here, निकल जाएगा, 2 निकलेगा. okay, d by dx of x cube. हाँ, Then फिर वो x रेज टू n का फॉर्मूला लगाएंगे. nx रेज टू n माइनस हाँ, 1, बताओ तो फॉर्मूला. 2x रेज टू 2 आएगा. Okay, और and फिर here वो 6. dx का तो Good. 6, हाँ, So 6 रेज okay, टू okay. 6 So स्क्वायर माइनस 6x square minus 6, correct? 6. हाँ. Okay. After that, dx by dy is equal to 1 upon 6x square minus 6. Correct? हाँ. समझा सबको? Okay. Now we'll go for exercise. Exercise 1.2. Question number first. Wait, मैं question निकाल रहा हूँ. Yeah. So question number first is find the derivative of function. Find the derivative of the function y is equal to f of x using the derivative of the inverse function x equal to f inverse of y in the following. Find the derivative of the function y is equal to f of x. That means dy by dx find करना है using the derivative of inverse function. That means dx by dy का use करके dy by dx find करना है. What is happening? ज्यादा ब्लर है क्या स्क्रीन? मैं अभी ठीक हो गया. मैम बीच में बहुत होता है फिर चले जाता है. ठीक होता है. It's because of net connection.
या बट मैं बोल रही हूँ तो तुम मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाओ, ठीक है? Okay, so first question is find the derivative of the function y is equal to f of x, that means dy by dx find करना है, but usual method से नहीं करना है, using the derivative of inverse function, that is dx by dy का use करके dy by dx find करना है. Okay, now theorem क्या बोलता है हमारा, dx by dy is nothing but 1 upon dy by dx. Okay, so इससे हमें क्या मिलेगा, dy by dx is equal to, इसको यहाँ पे लेके जाओ and dx by dy को डिनोमिनेटर में लेके आओ, 1 upon dx by dy. करेक्ट? सो टू फाइंड dy by dx सबसे पहले तुमको क्या करना है, dx by dy फाइंड आउट करना है, एंड टू फाइंड आउट dx by dy सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? सो एग्जाम्पल करते हैं. Exercise 1.2, question number first. Y is equal to square root of x. ठीक है? To find dy by dx. यूज क्या करना है, since dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. ओके, सो यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड करो. सिंस y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, दोनों साइड स्क्वायर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू x. करेक्ट? on squaring on both side you'll get x equal to y square. Now differentiate x with respect to y because you want dx by dy, correct? So differentiate x with respect to y. So dx by dy is equal to d by dy y square. You know formula for x raised to n. Since d by dx of x raised to n is nx raised to n minus 1, यहाँ पे जस्ट वेरिएबल चेंज हुआ है, x के जगह पे y है, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, 2y raised to 2 minus 1, that is 2y. Okay, now substitute this value here in equation 1. So you'll get dy by dx equal to 1 upon 2y. Correct? Now substitute value for y, which is equal to 1 upon 2 root x. Value of y substitute किया मैंने 1 upon 2 root x. ठीक है? समझा सबको कैसे करना है? Okay, done. So let's solve one more question. Fourth one. Yeah. Fourth one, y is equal to log 2x minus 1. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? यू नो प्रॉपर्टी ऑफ log m to the base n equal to x, then m is equal to n raised to x. log फंक्शन को अल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? m is equal to base raised to x. ठीक है, ये तुमने किया होगा 11th में. तो सिमिलरली
अब इसका बेस क्या है? e, so therefore 2x minus 1 is equal to e raised to y. now 2x equal to 1 इधर लेके आओ, e raised to y plus 1, x equal to e raised to y plus 1 divided by 2, डिनोमिनेटर सेपरेट करो, e raised to y by 2 plus half x. समझा सबको मैंने क्या किया? now you want dx by dy, so differentiate this function x with respect to y. so dx by dy is equal to 1 upon dy e raised to y by 2 plus half. सेपरेट करो डेरिवेटिव, dy by d by dy e raised to y by 2 plus d by dy half. correct? now 1 upon 2 is constant, take outside, derivative of e raised to y with respect to y is e raised to y. चेन रूल अप्लाई नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली y दिया है, फंक्शन नहीं है. करेक्ट? प्लस हाफ इज कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव इज 0. नाउ dx by dy is equal to e raised to y by 2 मिला, so therefore dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, which is equal to 1 upon half e raised to y. okay, which is equal to अभी भी ब्लर है क्या? हाँ मैम। ओके वेट. y बाई डी एक्स क्या मिलेगा? इसका रेसिप्रोकल लेना है, ये हो जाएगा 2 अपॉन ई रेस टू वाई. वाई की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट करो, 2 अपॉन ई रेस टू log 2x minus 1, which is nothing but 2 upon 2x minus 1. क्लियर? क्या किया? सबसे पहले log फंक्शन को अल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो by using this formula. You know that log m to the base n equal to x. इसको अल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? m is equal to base raised to x लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x minus 1 is equal to base is e, so ये हो जाएगा e raised to y. ठीक है, नाउ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी सारे टर्म यहाँ पे लेके आओ RHS में. सो 2x इक्वल टू e raised to y plus 1, देन 2 जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, x इक्वल टू e raised to y plus 1 डिवाइडेड बाय 2. मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया है बिकॉज जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो ये हाफ मेरा 0 हो जाएगा. ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट दिस x विद रिस्पेक्ट टू y. डेरिवेटिव सेपरेट करो, यहाँ पे 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए कॉमन निकालो बाहर. डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू y विद रिस्पेक्ट टू y इज e रेज टू y एंड डेरिवेटिव ऑफ हाफ इज 0. नाउ सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू dx बाई dy फॉर्मूला में. सो dy बाई dx क्या मिलेगा? 1 अपॉन हाफ e रेज टू y. सो ये हो जाएगा 2 अपॉन e रेज टू y. y की वैल्यू वापस से रीसब्स्टिट्यूट करो, log e 2x माइनस 1. मैंने फॉर्मूला पहले बताया था तुम्हें, a रेज टू log a रेज टू log m टू द बेस a इज इक्वल टू m. करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2x माइनस 1.
Clear? Okay, now can you solve this question? Y is equal to log x by 2 to the base 2. Y is equal to log x by 2 to the base 2. Find karo dy by dx using this formula. I'll give you 5 minutes, just do it. तो सबसे पहले इसको अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो. x by 2 is equal to 2 raised to y. मिला सबको यही? ओके, नाउ x इक्वल टू ये 2 इधर लेके जाओ, 2 रेज टू y इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू y प्लस 1. इतना मिला सबको? नाउ डिफरेंशिएट x with respect to y. Differentiate x with respect to y. dx by dy is equal to d by dy 2 raised to y plus 1. ओके, सो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? सिंस डेरिवेटिव ऑफ a raised to x is a raised to x log a, करेक्ट? सो फॉर्मूला अप्लाई करो. डन? क्या मिला? n के प्लेस पे 2 है. is nothing but 2 here and x के जगह पे y plus 1 है. करेक्ट? हमको क्या करना है? ये फंक्शन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y. सपोज मैंने फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 2 रेज टू x प्लस 1. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx 2 रेज टू x प्लस 1. इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं? हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. करेक्ट? डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज यहाँ पे फंक्शन x के फॉर्म में है. तो ये क्या आएगा? 2 रेज टू x प्लस 1 log 2 एंड वापस से हम चेन रूल अप्लाई करेंगे बिकॉज x के जगह पे हमारे पास है x प्लस 1. करेक्ट? सेम स्टेप्स हमको इधर अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू y के लिए. फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, बस वेरिएबल चेंज हुआ है. ठीक है? सो दिस विल बी, दिस इज इक्वल टू dy by dx 2 raised to y plus 1 is 2 raised to y plus 1 log 2, then again apply chain rule y plus 1.
करेक्ट, विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 log 2। अब ये डेरिवेटिव अंदर लेके जाओ, सेपरेट करो, dy बाई dy इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y इज 0, कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए। तो ये मिलेगा 2 प्लस 1 log 2 dx बाई dy, करेक्ट। अब dy बाई dx फाइंड करो, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy, so which is equal to 1 upon 2 plus 1 log 2, correct। now this is equal to 1 upon y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 log to the base 2 x by 2 plus 1 into log 2। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो क्या मिलेगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 2a इंटू 2b, लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 2 log x by 2 to the base 2 into 2 log 2 which is equal to 1 अपॉन ये हो जाएगा x by 2 into 2 into log 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन x log 2। क्लियर, क्या किया हमको dx बाई dy मिला 2 प्लस 1 log 2, देन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे 1 अपॉन 2 प्लस 1 log 2, y की वैल्यू मैंने रीसब्स्टिट्यूट किया है log टू द बेस 2 x बाई 2 प्लस 1 इंटू log 2, देन लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करो, सिंस 2a प्लस b इज नथिंग बट 2a इंटू 2b, तो मैंने इन दोनों को सेपरेट किया है बस, 2 log x by 2 to the base 2 into 2 1 into log 2। नाउ ये क्या हो जाएगा x by 2 into 2 into log 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन x log 2। क्लियर, हाँ मिस। ओके, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर होमवर्क, अगर कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, ठीक है। Now we'll go for question number 2. Okay, just 2 minutes. Yeah. Question number 2 is, find the derivative of the inverse function of the following, where your function is y is equal to x square into e raised to x। अब पूछा क्या है यहाँ पे तुमको, find the derivative of inverse function means dx by dy फाइंड करना है, ओके okay? इसलिए क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना पहले कि फाइंड क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, dy बाई dx ही फाइंड किया था बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बट यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, दैट मीन्स dx बाई dy। क्लियर, नाउ you know this theorem, dx by dy is nothing but 1 upon dy by dx, करेक्ट। तो यहाँ पे प्रोसेस इजी है, क्या करना है, डायरेक्टली y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड उसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx x स्क्वायर इंटू ई रेस टू x। अभी यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है,
that means u into v के फॉर्म में, and you know that derivative of u into v is nothing but u into derivative of v plus v into derivative of u, करेक्ट. सो सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट, which is equal to, you know that derivative of e raised to x is e raised to x, तो ये हो जाएगा x square e raised to x plus e raised to x into derivative of x square is 2x, correct. Okay, now this is equal to, you can take x e raised to x common, x e raised to x common निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा x and यहाँ पे 2. Okay, now just take reciprocal. Since dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, which is equal to 1 upon, value substitute करो, x e raised to x, x plus 2. Clear? मैम ब्लर हुआ है फिर से. Again. Okay. Now, नहीं मैं ब्लरी है. ओके ओके. हाँ थोड़ा ठीक है अभी. अभी ठीक है. हाँ. आपका Okay, so solve, you guys solve one question. Second one, y is equal to x cos x. Solve करो अभी. Y is equal to x cos x. Find out dy by dx. Apply u into v rule. वैष्णवी, हेलो. yes, किया solve? हेलो वैष्णवी. हेलो Yes, done. मैम मैं सृष्टि. Okay, yeah, सृष्टि, tell me. मैम एक क्वेश्चन था. वो हाँ. डेरिवेशन का एक रूल है कि अगर x रहा मतलब साइड में रहेगा तो उसको फिर से उसका डेरिवेशन लेना है ना. कौन सा? मतलब अगर x रहता x स्क्वायर या कुछ भी रहा तो उसका एक बार और डेरिवेशन लेना रहता है ना. yes, जैसे कि ये तुम्हारा can you ask me by giving one example? Actually, I'm not getting it. What you want to try to ask me? आंसर आया -x sin x plus cos x. तो
तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया क्या? See, are you asking this? D by dx x square. सृष्टि? हेलो, या यस मैम। क्या पूछा था तुमने पहले? हाँ मैम, अगर वो एक्स स्क्वायर रहा तो 2x आएगा ना इसका? यस यस, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना हाँ, है एक्स रेस हाँ, टू और एन के लिए। अगर 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 एक्स के जगह पे कुछ हो, हाँ लाइक ये 2x अगर होगा एक्स के जगह पे, हाँ तो हम चेन हाँ अप्लाई करेंगे। हाँ हाँ क्लियर? हाँ। ओके। और मैम आंसर 1/cos x माइनस x sin x है ना? cos x माइनस एक्स, ओके सॉल्व करना पड़ेगा, एक्चुअली मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो सब लोग अपने स्टेप्स देखते जाओ। y is equal to x cos x, differentiate y with respect to x, dy by dx is equal to d by dx x cos x। तो ये हो जाएगा x d by dx of cos x plus cos x d by dx of x, which is equal to x, derivative of cos x is sin x, यहाँ पे ओरिजिनली डायरेक्टली फॉर्मूला है तो चेन रूल नहीं अप्लाई होगा, प्लस cos x, oh sorry, derivative of cos x is minus sin x, so and d by dx of x is 1, तो ये मिलेगा cos x minus x sin x, यही मिला, and therefore dx by dy is reciprocal of dy by dx, that is 1/cos x minus x sin x। ओके, सबको मिला यही आंसर? यस। Okay, and those who are not responding, those who don't want to respond, don't want to answer, next time onward don't attend this class, okay? सी, अगर तुमको आंसर नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट यू लिसन एंड रिस्पॉन्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, there are more 3 questions, those are homework, question number 3rd, 4th and 5th, okay, sub question। Okay, now we'll go to question number 3. Question number 3 is find the derivative of the inverse of the following function and also find their values at the point indicated against them। Means क्या करना है? Question number 3 is find the derivative of the inverse of the following function, y is equal to, first one, y is equal to x raised to 5 plus 2x cube प्लस 3x, मीन्स इसका जो इनवर्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेम dx by dy एट x इक्वल टू 1। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद हमें फंक्शन x के फॉर्म में मिलेगा, देन x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट्स इट। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन इजी है, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन करती हूँ, 4th वन। y इज इक्वल टू sin x minus 2 plus x square at x equal to 2, okay, that means find क्या करना है, dx by dy। for that find out dy by dx means differentiate y with respect to x, तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to d by dx sin x minus 2 plus x square, okay,
नाउ सेपरेट करो डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस 2 प्लस डी बाई डी एक्स स्क्वायर. Now derivative of sin x is cos x. This is equal to cos x minus 2, but x के जगह पे x minus 2 है, इसीलिए चेन रूल अप्लाई करेंगे, that is d by dx of x minus 2 plus here apply d by dx of x raised to n is nx raised to n minus 1, तो ये हो जाएगा 2x raised to 1, correct, which is equal to cos x minus 2. अब डेरिवेटिव अंदर लेके जाओ, सेपरेट करो, d by dx of x is 1 and derivative of 2 is 0, so 1 minus 0 and plus 2x, which is equal to cos x minus 2 plus 2x. ये हो गया dy by dx and therefore dx by dy क्या मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना है, 1 upon cos x minus 2 plus 2x. Okay, now find out किस पॉइंट पे करना है, x इक्वल टू 2 के लिए, दैट मीन्स dx by dy at x इक्वल टू 2, ये नोटेशन है, ठीक है. दिस इज इक्वल टू x के जगह पे 2 पुट करो, cos 2 minus 2 plus 2 into 2 which is equal to 1 upon cos 0 plus 4. Now cos 0 is 1, correct, so ये हो जाएगा 1 by 5. समझा? See, each and every time I am telling you how to apply chain rule, so ध्यान दो और जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो. ओके, डन. Okay, now you guys solve one question. Question number 3. Y is equal to 3x square plus 2 log x cube at x equal to 1. ओके, अब देखो यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई करो और इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हो. ये किस फॉर्म में है, log m रेज टू n के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा n log m, करेक्ट. तो ये 3 को इधर आगे लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 6 log x. अगर नहीं सिंप्लीफाई करना है तो भी चलेगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, बट फिर तुमको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, डन. आशुतोष ने आंसर दिया. आशुतोष अनम्यूट योरसेल्फ.
यस मैम। टेल मी, स्टेप्स बताते जाओ. डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। Okay, dy और by dx is हाँ equal to d सेपरेट. by dx। हाँ, हाँ ओके ओके। log x क्यूब। okay, then 2 3 into 2x प्लस हाँ, log क्यूब है ना मिस। मैंने ऐसा किया, वो 3 को साइड लेके तो 6 log x हो गया था। हाँ, okay, so this will be your 6 and ये फिर हो जाएगा log x. हाँ तो 6 1 by x। Okay, correct. Then 6x 6x plus 6 प्लस by 6 x. by x। Okay, तो 1 अच्छा वो फिर मिस वो फॉर्मूला यूज करके 1 by 6x प्लस 6 by x। okay, फिर मिस वैल्यू डालना है x इज इक्वल टू 1, yeah, फिर 1 by 12। good. तो 1 by मिला 12 सबको? यही मिला ना सबको? Similarly, question number 4. Question number 4 is f of x दिया है x क्यूब प्लस x माइनस 2. ओके, फाइंड आउट करना है f इनवर्स डैश एट 0. ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? ये इनवर्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, देन x की वैल्यू 0 पुट करनी है. समझा? मीन्स सपोज अगर ये तुमने y ले लिया, y इज इक्वल टू दिस, मीन्स dx बाई dy फाइंड करना है एंड देन x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी है. ओके, कर लोगे? सी दिया क्या है? f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2. ओके, फाइंड क्या करना है? f इनवर्स डैश एट 0. दैट मीन्स f इनवर्स मतलब क्या? इनवर्स फंक्शन, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एंड देन x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी है. फॉर एग्जाम्पल सपोज f ऑफ x तुम लोग नहीं डिनोट कर रहे, तुम कंसिडर कर लो कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2. ओके, नाउ इसका मतलब क्या हो जाएगा कि dx बाई dy फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0. जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास में आई वांट कि तुम इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव याद करके आओ. आई टेल यू. या सो जैसे हमारे पास फॉर्मूला था, मैंने तुम लोग को दिया था डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स एंड ऑल. वैसे ही इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट वन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स is equal to 1 upon square root of 1 minus x square. Second, d by dx of bit d by dx of cos inverse of x is minus 1 upon square root of 1 minus x square. Third, d by dx of tan inverse of x is
1/1 plus x square. Fourth, d by dx of cot inverse of x is minus 1/1 plus x square. Fifth, d by dx of sec inverse of x is 1/x square root of x square minus 1. Okay, and last one is d by dx of cosec inverse of x is minus 1/x square root of x square minus 1. So याद कैसे रखोगे? ये तीन याद रखो, साइन, tan एंड sec. पेयरिंग याद रखो, साइन इनवर्स ऑफ x इज 1/square root of 1 minus x square. तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में आएगा. minus 1/square root of 1 minus x square. ओके, सिमिलरली tan और cot की पेयरिंग है, तो tan का याद रखो 1/1 plus x square. cot के लिए नेगेटिव लेना है. सिमिलरली sec के लिए याद रखो cosec का नेगेटिव लेना है. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टाइम ये याद करके आना. इसका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.